Hello everyone. Hi Aryan. Hi, am I audible? Yeah, you're clearly audible. Yeah, okay. So let other people join. Then we will start the session. Hi Aryan, Hello. how are you? Yeah, I'm good. What about you? Okay, so guys, am I audible? My voice is clear. It's Yeah, a bit it's clear to unclear. me. Yeah. No, it's a bit unclear to me. Okay. Hello. Yeah, you're clearly audible, Aryan. Yeah, now you are audible. Okay. Okay. So, hello everyone who are joining now. Hi Aditi God. Hi Radha Jha. Hi Divya Pyaruni. Hello. Hello. Hi Aryan.
All the best to everyone. Thank you so much. Same to you. So, guys, are you all ready? Yeah. Yep. What about others? They are on mute. Okay, so we wait for 2 minutes, then we'll start the session. Let a few other performers join, then we will start. Okay, okay. Okay. Hello, everyone. Hello. Hi. Okay. So we have a few people with us, so we will start now. Okay. So, hello everyone. My name is Aryan Verma, and I'm welcoming you all at Split Poetry India's virtual open mic day 2, where very talented poets and singers gonna perform, and you must be knowing them, and few were actually unknown. So, this session is gonna be so amazing. So, with this, I would like to start the session. So, before starting, I would like to tell you the rules and regulations about related to this session. So, the first is that all the participants are requested to turn off their mics so that the performers doesn't get interrupted by other kind of noise. Okay. Second is ki every performer will get maximum 15 minutes. Okay, every performer will get maximum 15 minutes for the performance. As soon as your name is being called, you need to turn your camera on, and after a short introduction, you can start your performance.
the all the viewers and all the performers can appreciate them via commenting in the chat box. So with this, I'd like to start this session. So the thing is ki how is the quarantine going on? I'd like to ask this question to everyone. How is the quarantine going on? You can turn on your mics and you can tell. How is equality going on? How is the Quarantine, quarantine. quarantine? Quarantine. Okay, yeah. So I've been writing a lot of poems. I wrote 55 poems in the lockdown. Oh my God. Great. Yeah. I was eating Gulzar, Premchand, and Rumi. Wow. Great, great. So, we would start with our first performance. So, I'd like to call Divya Pyarini. We have Divya Pyarini with us. She will be performing live here. Hello everyone. Am I audible, Aryan? Yeah. Actually, you are audible. Hey, Divya. Hi, I'm from Solapur and I'm BCom pursuing student. I would start with my poetry. My first poem name is Peace. She was wandering on that empty path. There was darkness all around, sharing thoughts of from where to start. It was like she always had a crown that not only gave her pass but also took her down along with it. All she wanted to do was quit. She didn't wanted that 9 to 5 undertaking as if it was too suffocating. She wanted a retake of her life. She was even ready to strive. But at present, all of it didn't matter. Ignoring the pieces that were scattered, on the same path she became fond of the silence. On every step, she was trying to keep her emotions in balance. She didn't wanted it to stop. She was enjoying each and every moment, making her feel like she was on the top. She wanted to live a little bit more, as she was piling up the memories that she would like to restore. So, this was my first poetry. The second poetry is Oh dear, oh dear, just come to me. I want to feel the warmth of your body. I want to see the shyness in your eyes when I play with your hair. Rest on my chest and look how fast my heart beats for you. Even if you live in this ordinary world, I'll show you the beautiful wonders. It may, it may be not as sight-catching as you are, but I want to show you how colorful a life can be if you are in it. I can't arrange a big birthday party for you, but I'll still be there in front of your eyes at 12 sharp with a chocolate cupcake in my hands and a small candle on it. I can't cook food for you, but I promise you will have your morning coffee in bed. You are my that doll I'll always like to have by my side. I reassure you, your cheeks do not touch of your cheeks do not have the touch of your tears, ever. I'll give you that care and respect which will make you fall for me all over again. I'm just melted by the way your eyes catch sight of me, and within the very next second, your smile pops up. I may have seen many sunsets with you, but I want to see you next to me when the sun kisses your face. You should seriously see how you look when you freak out over small things. And I'm still irritated by your face when you make to annoy me. But oh dear, I love you for being you. You have changed me, and that's true. My third poetry is Tale of a Brave Heart. Today I'm shutting the door. No, not of my house, not of my room, the doors of my heart that were first opened to all. They scratch it with a knife and laugh at you for not even handling just a touch of needle. It feels to shout out loud and say what actually hurts. But then having a thought of who might actually care pulls you back. At some point, being in a company makes you frightened.
so frightened that you prefer staying in the darkness. You know why? Because this heart has come across so many two-faced people that you keep thinking, is there still humanity left? They will ignore you on your face and laugh at you behind your back. And this stupid heart, it just cannot listen to you. It gives you false hope and the same adorable smile. And then there is you, wiping your tears and stepping towards the same path all over again. My next poetry, This was really Musically awesome. Glee. Thank you, Aryan. Next poem, Musically Glee. Walking on the footpath on that rainy day, listening to the song I was obsessed with. It was as if the song had much more to say, each line having two meanings, wanting to see the bigger picture of it. I was just slayed by the music. It was just soothing my heart. At that point, it didn't matter what was going on in my life, what issues I had, or who just passed through me. The only thing that made a difference was I wanted to listen more of it, as if it should never end, as if it was speaking to me, trying to calm me down. Sometimes you don't know how. You just know that it didn't bring pleasure. Just like that, as the water droplets had the whole world to be in, so did my heart having some tempting music. So this was so my last poetry is more about the motivation. Its title is Great. The Awakening. Many of us have given up over the thought that you still have a present life. Crying about the past and focusing on the future has nothing but made your presence worthless. When was the last time you lived in the moment? When was the last time you had that beautiful and real smile on your face? When was the last time you actually took a step ahead to talk to people? What if you came to know that the people for whom you saved your future time is not even alive anymore? Even a rose makes sure to spread its fragrance before it dries out. And we being humans, having all the abilities, forget what life actually means. You will know that you have earned something the day when someone laughed and was happy the whole day only because of you. So wake up before it's too late. So these are my poetries. Wow, I would these like to are awesome. Really awesome. thank you, Aryan. I would really like to thank Split Poetry India for giving me this chance. Thank you all. Okay, we are really glad to have writers like you who really want to they like to participate in various like we do some live sessions and now this virtual open mic. So we are really glad to have writers like you with us who are really very talented. So you got a lot of comments. They all appreciated you. So Thank you. yes. Thank you, everyone. Thank you, Aryan. Okay, so this was Divya Pyarni, and her content was really awesome. Like her name Pyarni, they all were so pyara. So I hope you guys really enjoyed her contents. Okay, so coming to our next performance, we have Tanisha Khurana. Tanisha Khurana, are you there? Hello everyone. Okay, hello. Okay, so I have done English honors in my graduation, and my mother told me that I write more good in Hindi, so I decided to write in Hindi then. And I have written 55 poems in the lockdown, and I'm soon going to launch the book in December on my birthday, 29 Wow, December. that's really very great. Yeah, so I'm already an author of two books, Untamed Verses, a poetry book, a poetry compilation, and Dancing with My Song, short stories. So I have two books selling on Amazon right now. Wow. Okay, so my first poem is Kal.
गुजरे हुए कल से आज फिर मुलाकात हुई। रुला तो देता ही है वक्त, क्योंकि खुशियां हैं तो बिछड़न भी। जरूरत है कल की पर आदत नहीं। फिर मुलाकात हुई आने वाले पल की महफिल से। जैसे चाहे सोच लो, पर एक खुशी के साथ एक शिकवा भी देती है। कुछ साथियों को छोड़ने का, कुछ राहों को बदलने का। कुछ अधूरी बातें तो रह ही जाएंगी। ना तो बीते कल में हिम्मत थी, ना आने वाले कल में हिम्मत होगी। पर आज जो है वो तो धुंधला है। क्या ये शायरी का रंग सबको यूं बेजुबान कर देता है, कि सिर्फ पन्नों पर लिखना ही जीविका है? कुछ तो बात है इस पल में, जो आज भी कांप उठता है। चल जीते हैं कल, जो मिले सहारा तो मिल जाएगा किनारा। वाह, काफी बढ़िया, काफी बढ़िया। दूसरी पोएम मेरी है दुआ। कुछ तो दुआ गलत कर ली, कि अब बेचैनी सी होती है। वो रोज डर डर कर सहम कर सोती है। अगले दिन फिर होश में आती है, जिंदगी से मुलाकात की कोशिश करती है। वो पल भर की हंसी, उसकी बिन आकांक्षाओं की आंखें, जो नम है गुम है, उसका ऐसे चलना जैसे रही है सालों से। कल ही मुलाकात हुई है उस दुआ से, आज जो पूरी हो गई, और वो सालों बाद चैन से सो गई। रियली ऑसम। आंसू। कुछ कहते हैं कमजोर दिल रोते हैं, कुछ कहते हैं आंसू मानो उगलता हुआ प्यार है, इकरार है या बर्बादी का शोर। अब तो सबके सामने रोना गुनाह सा लगता है। रोते हैं पर कोने में, तब तक सीने में दिल के किसी कोने में इसे दफना दिया करते हैं। और हंसते हैं जोर जोर से, हंसाते भी हैं जोर जोर से। जो जार जार रोते हैं अक्सर वही तो जोकर होते हैं। सारे दर्द छुपाकर सबको खुश कर दिया करते हैं। मेरी तीसरी पोएम है नफरतें। पहले तो बस उलझन थी, कि प्यार तेरा सच्चा था या नहीं। अब तो यकीन है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई किसी को कैसे भूल सकता है, जिसके साथ सितारों में अपने गुजरे हुए कल देख लिए, जिसकी बाहों में आने वाले कल सोच लिए। इतनी जल्दी कोई किसी को कैसे भूल सकता है? दर्द का सारा घूंट मैं अकेले पी गई, तो जहर भी मुझको ही कहता है। जानती सब हूँ पर कहती कुछ नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है। ये मेरी फोर्थ पोएम है अरमान। सुन जरा है मुसाफिर, अरमान लाया तुझे यहाँ, या फिर तुझे लगा सब बड़े लोग खुद को ढूंढ कर ही मिलते, पर वो मिले कहाँ, वो जुनून में भस्म हो गए। जीने का नया तरीका सीखने निकले थे, पुराने सारे रास्ते भुला बैठे। कितने कायर थे कि कभी घर ना पहुंचे, क्या मुंह दिखाते अपना वो तो सहारे के वक्त गुमशुदा निकले। अब फिर कुछ अब फिर पूछ खुद से, क्या अरमान घर पर पूरे नहीं होते? अगर ऐसा है तो सब घर से क्यों नहीं निकलते? सो दिस इज माई लास्ट पोएम वादा। क्या करूं उन वादों का जो तुम सब ने किए, जब मैं अकेले पड़ गई जब मैं अकेले पड़ गई, तब कौन सा सफर सफर शुरू कर लिया। जरा सा भी जरा सी भी शर्म नहीं आई, कि एक बार हाल जान लिया होता। बोलती तो झूठ ही, कि बहुत बढ़िया हूं मैं, बाकी की जंग मुझ पर छोड़ देते। कहाँ गई वो बड़ी आंखें, जिन्हें देखकर भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन। पर तुम सब ने तो सोच लिया था इसे शायरा ही बनाकर छोड़ेंगे। Thank you everyone, and I thank Split Poetry for giving me this chance to perform. And right now I have a fracture. Still, I was able to perform. Otherwise, I've been sleeping a lot and was not able to wake up. But my mom was like, "Your open mic has to be happen today, so you have to like wake up." So I was keeping myself awake by drinking a lot of water. This was And really thanks for very awesome. Like, and thanks all for the so many poetries are, comments. yeah, all the poetries are really very awesome, and yeah, we really appreciate your efforts. Like, yeah, uh, uh you have a fracture, but you are performing over here. Like this is a kind of message for everyone. Like, uh
spirit should be in everyone. Yeah, thank you. Yeah. Okay. So yeah, we really enjoyed your poetries, and the feel uh, in these poetries were really awesome. We all can we all can relate to it. So we're glad to have you over here. Okay. So guys, right now we have few performance left. So before moving ahead, I'd like to recite something. I hope like seeing you all reciting, I thought why should I not recite anything like so. I hope you all will like. So should I recite? I need your favor, guys. Yeah, sure. Yeah, yeah, please go on. Our mic was on mute. Please go on. Yeah, Yeah, okay. yeah. All the best. Yeah, thank you. Okay, so this is a poetry, and this is a type of poetry. Its type is where it starts, it ends at that place. So, at the point I'm starting this poetry, the poetry will end at that particular point. So, this poetry is basically in Hindi. सूरज ढलता है, रात होती है, एक मीठी सी मुलाकात होती है. मीठी इसलिए क्योंकि उन पलों में मिठास होती है जो वाकई में बेहद खास होती है. अब बात खास की चली है तो कह ही देता हूँ. एक शख्स भी बेहद खास है जो दूर हो के भी दिल के पास है. जिसका होना मानो सावन में बरसात जैसा है, जिसका चेहरा मानो चांदनी रात जैसा है, जिसकी खुशबू सरसों के खेत खलियान जैसी है, जिसका सौंदर्य फूलों के बगान जैसा है. अब बात फूलों की चली है तो कह ही देता हूँ. फूल उसे गुलाब पसंद है, हमें उसका चेहरा है शबाब पसंद है. गुलाब इसलिए क्योंकि प्यार से बाहों में लो तो सुकून देती है, वही अगर जबरदस्ती करो तो निकलवा खून देती है. अब बात खून की चली है तो कह ही देता हूँ. खून का रंग लाल होता है, फिर भी हम सबको ये मलाल होता है कि जिंदगी पल भर की है, पल भर का सवेरा है, बाद बाकी क्या है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है. अब बात अंधेरे की चली है तो कह ही देता हूँ. याद है, सूरज ढला था, रात हुई थी, एक मीठी सी मुलाकात हुई थी. तो बस उन्हीं मीठी मुलाकातों का वक्त हो चला है. अलविदा. Okay, so this was my poetry. I hope you guys enjoyed. It was too amazing. So Thank you, nice, Divya. so heartfelt. Thank you so much. Really, Aaron, this was amazing. Thank you, Apu. Thank you, Aditi. Thank you, Anshika. Okay, so moving ahead to our next performance. So we have Apur Pandey with us. Apur. Hello, everyone. Before I start, एक request है आप लोगों से. For my first poetry, I'll need every one of you. So can you please unmute yourself? Then actually, if they will unmute, then you will have some noise disturbances. So Just for 2 lines, just for the first 2 lines. I just have a question before I start my poetry. That's all. Just for okay. 2 minutes. Okay, so thank you everyone. Before I start, थोड़ा मेरे बारे में. मैं अपूर्व पांडे हूँ. Currently कोल इंडिया लिमिटेड में जियो साइंटिस्ट की जॉब कर रहा हूँ रांची में. Wow. और थैंक यू. और कॉलेज के टाइम से लिख रहा हूँ. और एक बुक भी आने वाली है मेरी. अभी कोविड के चलते थोड़ा सा डिले हो गया है कि मेरे पिन कोड पे खुद ही डिलीवर नहीं होगी वो, तो हम लोगों ने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया इतवार के नाम से. तो पहली मैं कोशिश करूंगा अपने 15 मिनट को बड़े आराम से लूं. बीच में थोड़े लंबे पॉजेज होंगे मेरे. आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि पोएम खत्म हो गई है. मैं बता दूंगा. और बिफोर आई स्टार्ट, एक क्वेश्चन है. ये जो पहली कविता है मेरी, इसका शीर्षक मैंने दिया है असली आजादी. एक क्वेश्चन ये है, कोई भी इंसान आजाद होने के बाद कैसा महसूस करता होगा? एनीवन? जैसे पानी की तरह बह रहा हो. वेरी गुड, तनिषा. जैसे Anyone खुले else? आसमान में उड़ रहा हो. In very short, happy, right? Yeah. Okay, thank you very much. You can unmute yourself. You can mute yourself now.
सो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था जब मैंने सीनियर्स को अपनी हॉबी बताई थी कि मैं पोइट्री करता हूँ. एंड आई गेस इट वाज टाइम ऑफ जुलाई. तो उन्होंने बोला अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन तुम्हें एक पोएम सुनानी है सबके सामने. तो कुछ नया लिखने को बचा नहीं है. 70 साल से 7,000 कविताएं लिखी जा चुकी हैं, सारी की सारी एक दूसरे से अच्छी हैं. तो फिर मैंने कुछ नया सोचा कि आज़ादी के दिन भारत माँ बच्चों से क्या कहना चाहती होगी. तो शुरुआत मेरी भी ऐसी हुई थी कि काफ़ी खुश होगी, लेकिन एट द सेम टाइम फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ उसी दिन उसके बंटवारा भी हुआ था. एंड इफ़ यू आस्क मी देन आई एम श्योर कि कोई भी माँ बेड़ियों में रहना ज़्यादा पसंद करेगी रादर देन ये देखते हुए कि उसके बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं. सो आपके सामने है, कविता हाजिर है. टाइटल है असली आज़ादी. भारत माँ अपने बच्चों से क्या कह रही है. मेरे टुकड़ों को जाने कब मेरे टुकड़े करना आ गया. मेरे टुकड़ों को जाने कब मेरे टुकड़े करना आ गया. जिसकी कोख में जिए जन्म उसकी जान से खेलना आ गया. कल तक जिस माँ को आवाज दिए थकते नहीं थे बच्चे, आज उन्हें ना जाने कैसे उसका खून बहाना आ गया. चीर मुझे टुकड़ों में दुश्मनी की सांसें जीते हो. चीर मुझे टुकड़ों में दुश्मनी की सांसें जीते हो. रिश्ते तोड़े जिस दिन उसे आजादी का नाम देते हो. क्या पाया तुमने अपने अपनों को बैरी बनाकर. क्या पाया तुमने अपने अपनों को बैरी बनाकर. क्यों मेरे बच्चों ये झूठी आजादी सहते हो. मैं चीख रही थी आहों में कोई सुनने नहीं आया. मैं चीख रही थी आहों में कोई सुनने नहीं आया. चीर दिया मुझे टुकड़ों में कोई मरहम नहीं आया. क्यों इतने खुदगर्ज हो गए तुम कि ये भी एहसास ना रहा. क्यों इतने खुदगर्ज हो गए तुम कि ये भी एहसास ना रहा. मैं रोती रही दिनों रात कोई आंसू पोंछने ना आया. छूटी खुशी को फिर अपना लो वक्त अभी बाकी है. छूटी खुशी को फिर अपना लो वक्त अभी बाकी है. नफरत की राख से इश्क सजा लो मोहब्बत बहुत बाकी है. कब तक यूं मेरे तन को लकीरों से सजाते रहोगे. कब तक यूं मेरे तन को लकीरों से सजाते रहोगे. हाथ बढ़ाने भर की है देरी असल आजादी अभी बाकी है. मेरे कलेजों को जाने कब मौत का दामन भा गया. मेरे कलेजों को जाने कब मौत का दामन भा गया. कली खिलने को बेताब थी जो उसे कांटों में घुलना आ गया. एक बार तो कोई बेटा मेरे तन को सहला जाता. एक बार तो कोई बेटा मेरे तन को सहला जाता. जिनके सर पर फेरे थे हाथ मैंने उन्हें मेरा सर काटना आ गया. मेरे टुकड़ों को जाने कब मेरे टुकड़े करना आ गया. जिसकी कोख में जिए जन्म उसकी जान से खेलना आ गया. ये थी पहली कविता मेरी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आर्यन. और मैं टोटल 4 कविताएं सुनाने वाला हूँ. आई होप कि वो टाइमली फिनिश हो जाएंगी. और दूसरी जो कविता लिखा हूँ वो बच्चों पर है, लेकिन हमारे बचपने पे नहीं है. ये उन बच्चों पर एक्चुअली जिस एरिया में मैं काम करता हूँ काफ़ी जंगलों में है, थोड़ा सा रेड जोन एरिया है, नक्सलाइट प्रोन एरिया है. और वहाँ पे गरीबी मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली देख ली. जो मूवीज़ में देख के आंसू आता था वो रियलिटी में जब देखा तो आंसू भी नहीं है. इतना रियलिटी में देखा है इसको यहाँ पर. तो बहुत बच्चों को देखा जो फुटपाथ पर सोते हैं. तो सोचा उन बच्चों पे लिखा जाए और एट द सेम टाइम अपने मम्मी पापा को भी, अपने माता पिता को भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाए कि थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड दैट वी आर नॉट लिविंग दैट लाइफ. राइट. सो अगली पोएम है. टाइटल है बच्चे. नीम की वो सूखी शाख से होते हैं. नीम की वो सूखी शाख से होते हैं. लाखों हैं बच्चे जो फुटपाथ पर सोते हैं. अब भागते नहीं वो लंबी गाड़ियों के पीछे. चारों पहर रोटी की ताक में रहते हैं. फरिश्तों को भी एहसास है इस कहर का. फरिश्तों को भी एहसास है इस कहर का. वो खुदगर्ज इमारतों की बाह में सोते हैं. लाखों हैं बच्चे जो फुटपाथ पर सोते हैं. बड़ी ही एहतियात से पसरते हैं वो जमीन पर. तन जिनके चादर के मुहताज न होते हैं. बारिशों में लोग भीगते हैं अमन से और सड़कों पर बच्चे बेहिसाब सोते हैं. अक्सर आती है खबरें दरवाजे के नीचे से, स्क्रीन पर चमक कर या कानों के पीछे से,
कि कौन मरा और कौन बिका, था नाम क्या है कौन सगा, वो क्या सपने देखता था, वो क्यों चूड़ियां बेचता था, कौन सा सिग्नल उसका था, वो कौन उम्र का बच्चा था, कि क्या कहते थे लोग उसे, कहाँ रखा गया था कैद उसे, मुआवजा क्या सरकार का है, कितना मुंबई कितना बंगाल का है, कितना मुंबई कितना बंगाल का है। माँ बाप सभी के हमारे जितने कामयाब नहीं होते हैं, लाखों हैं बच्चे जो फुटपाथ पर सोते हैं। अब भागते नहीं वो लंबी गाड़ियों के पीछे, चारों पहर रोटी की ताक में रहते हैं। लाखों हैं बच्चे जो फुटपाथ पर सोते हैं, लाखों हैं बच्चे जो फुटपाथ पर सोते हैं। Really, really awesome, Apurv. थैंक यू सो मच आर्यन, थैंक यू। ये दो कविताएं हो गई मेरी। तो एक बड़ी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है जब हम लोग कुछ सीरियस लिखते हैं, तो एक बड़ा स्टीरियोटाइप हो जाता है पोएट्स को लेके कि या तो वो सिर्फ रोमांटिज्म लिखते हैं या फिर कुछ सैड बिल्कुल सी बातें बिल्कुल। लिखते हैं। ये सब रिलेट कर सकते हैं, होता है सबके साथ। एग्जैक्टली सो फिर मैंने सोचा कि बीच में मेरी फोर्थ पोएम जो इसके बाद की है वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। तो इससे पहले मैंने सोचा कि थर्ड पोएम थोड़े ऑप्टिमिज्म पे लिखता हूँ कि आज के टाइम पे कुछ हैपनिंग है। तो मुझे यार हम सब आई बिलीव कि हम सब 90s किड्स है राइट, जब 2000 के अराउंड पैदा हुए हैं। एटलीस्ट हम सब ने लालटेन देखी है, यू ऑल गाइज रिमेम्बर द लालटेन, जो हम लोग घर में लालटेन जलाते थे तेल में डाल के बाती बाहर निकाल कर, राइट। बिल्कुल। सो लालटेन से एक चीज मैंने लिखी है, इसका अगली कविता का टाइटल भी लालटेन ही है कि जब हमारे घरों में जनरेटर्स और इन्वर्टर्स नहीं हुआ करते थे तो लाइट चले जाने के बाद आंगन में माँ लालटेन जला लेती थी। उसी लालटेन में पापा अखबार पढ़ लिया करते थे, हम लोग पढ़ने का दिखावा कर लिया करते थे, और घंटों लाइट नहीं रहती थी लेकिन वो घंटों लालटेन जलती थी। ये कितना कम डिमांड करती थी लालटेन हमसे और कितना ज्यादा दे जाती थी। और आज के टाइम में जब हमारे पास जनरेटर्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, तो आज की हमारी लाइफ में एक लालटेन को ढूंढना, एक लालटेन को जलाना इतना मुश्किल जाने कैसे हो गया है। उसी पे कविता है, शीर्षक है लालटेन यूं ही जलने दो। लालटेन यूं ही जलने दो, मानता हूं तरीका पुराना है और रोशनी भी थोड़ी थकी सी, ख्याल दकिया नूसी है और जलती लौ भी बुझी बुझी सी। ये भी समझता हूं जेबों में फ्लैश सभी के है, यहां तक कि बिजली भी कम ही जाती है, कमरे सीएफएल से लैस सभी के हैं। बेमेहनत कोने पड़े एक लौ जगती है, जगने दो, लालटेन यूं ही जलने दो। सोचो ये बूढ़ी टीन की पुड़िया किसके लिए पिघलती है, सोचो ये बूढ़ी टीन की पुड़िया किसके लिए पिघलती है, शहर शहर की ठोकर इसके ईगो को क्यों नहीं लगती है। जब बल्ब सब महंगे साल 2 साल के मेहमान हो जाते हैं, ये शांत पड़े कोने में लगातार ही जलती है। रंग रूप की बातों से बचकर असली बात बने हैं बनने दो, तुम हाथ झटकते फिरते हो वो थामे हैं फिर भी रहने दो, लालटेन यूं ही जलने दो। और ये आखिरी स्टैंजा इसका, याद है कैसे कहते थे कोई प्यार करे अनकंडीशनल सा, याद है कैसे कहते थे कोई प्यार करे अनकंडीशनल सा, दफ्तर की मार ट्रैफिक की हार के बाद मिले वो सावन सा। नजर उठाकर देखो वो कमरे में ही बैठी है, रोशनी जो ढूंढी जहां भर में तेरी आंखों में ही रहती है। जब कड़की बिजली भड़के बादल पंख सारे हुए थोड़े घायल, 100 हवाओं के मझधार एक आग जो दहकी दहकने दो। झूठ के कारोबार की दुनिया वक्त के व्यापार की दुनिया, झूठ के कारोबार की दुनिया वक्त के व्यापार की दुनिया, इस मृग तृष्णा वाली दुनिया में सच का इत्र है महका, महकने दो, लालटेन यूं ही जलने दो, लालटेन यूं ही जलने दो। ये मेरी थर्ड पोएम थी। बहुत बढ़िया, काफी उम्दा, काफी उम्दा। थैंक यू वेरी मच आर्यन। और ये अगली पोएम एक कहानी है जिसको पोएम के फॉर्म में रखा है, इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इनके बारे में ज्यादा बोले ना, परफॉर्म ज्यादा करें तो बेहतर होगा। सो बस मैं शुरू करता हूँ। इसका टाइटल है फर्स्ट ऑफ ऑल
प्लीज ऑफेंड मत होना कोई भी, इसमें सिर्फ मेटाफर्स हैं। और अगर जैसे मैं कभी यूट्यूब वगैरह पे पोएम्स डालता हूँ तो उसमें डिस्क्लेमर होता है, तो यहाँ पे उतना बोलना नहीं, बस हम सब पोएट्स हैं और मेटाफर की तरह सारी चीजों को इस्तेमाल किया है। इस कविता का टाइटल है बुर्का नहीं डालूंगी मैं। बुर्का वही वस्त्र होता है जो मुसलमान औरतें पहनती हैं। तो इसमें बुर्का का वो मतलब नहीं, बुर्का का मतलब हुआ कि छिपूंगी नहीं मैं, कितना भी हो जाए, कितनी भी समस्या है, मैं छिपने नहीं वाली हूँ, बुर्का नहीं डालूंगी मैं। हर रोज की तरह एक नया दिन, और हर रोज की तरह आज भी अखबारों को अगले दिन की खबर मिल चुकी है। खबर कुछ यूं है, फला मोहल्ले की फला फला मोहल्ले की मिस फला के साथ हुआ दुर्व्यवहार, इस महीने की फला संख्या की घटना। और फिर जिंदगी आगे बढ़ जाती है और अगले दिन फिर एक ऐसी ही खबर मिल जाती है, जो ऐसी ही खबर छप जाती है। ऐसी एक खबर के दिन सड़क पर एक लड़की खड़ी हुई है जिसके साथ घटना हुई है, और लड़की इस घटना स्थल के पास खड़े एक आदमी से बोलती है, लफ्ज कहने वाले गुजर जाते हैं कहकर, लफ्ज कहने वाले गुजर जाते हैं कहकर, लफ्ज सुनने वाली पर जो बीतती है सुनो। हैवानियत की मुस्कानें घेरी हैं सुबह से, डरी सी आंखें क्या ढूंढती हैं सुनो। लड़की की इस बात को सुनकर वो आम आदमी जवाब देता है, कहता है, रूह जल उठती है, रूह जल उठती है अमानवता की सोच से, रूह जल उठती है अमानवता की सोच से, मगर साधारण सा इंसान हूं, क्या करूं बताओ। माँ बहन ही काफी है बोझ बनने को, कब सुनूं तेरी कराहें, जरा हमें भी समझाओ। उस आदमी के जवाब से नाखुश वो लड़की उससे मुंह फेरती है, उधर गुजरते हुए एक बुजुर्ग को देखती है और बोलती है उससे, बेटी सी हूं आपकी, बेटी सी हूं आपकी और बहन सी तुम्हारी, छू कर तन और नोच आत्मा देखो दरिंदे जा रहे। बेटी सी हूं आपकी और बहन सी तुम्हारी, छू कर तन और नोच आत्मा देखो दरिंदे जा रहे हैं। कल भी छेड़ा था, कल भी छेड़ा था, कल फिर आएंगे, मैं डर रही अकेले वो फिर सताएंगे। राखी बांधी थी ना, आवाज तो उठाओ, आज बाजार में छुआ है, कल घर तक आ जाएंगे। लड़की की इस बात को सुनकर वो बुजुर्ग अपना सर नीचे कर लेता है और बड़ी धीमी आवाज में बोलता है, मिट चुका है देश बेटी पश्चिम के अभिशाप से, मिट चुका है देश बेटी पश्चिम के अभिशाप से। रोज की ये बातें हैं अब तो दिन की शुरुआत से, बात ले मेरी मान एक बुरखा डाल शरीर पर, बात ले मेरी मान एक बुरखा डाल शरीर पर, सर झुका कर चल जरा हर चोट ले आदाब से। इन दोनों के जवाबों से खुश वो लड़की, बिल्कुल नाखुश वो लड़की अपने घर पे भागती है, अपनी माँ अपनी जगत जननी उसके पैरों में गिर पड़ती है और बोलती है, माँ देखो ये खरोच इसकी गहराई नहीं नपती, माँ देखो ये खरोच इसकी गहराई नहीं नपती, मुझे वो दोष दे रहे हैं जिनसे आवाज नहीं उठती। फेर लेते हैं निगाहें फिर तरस को आ जाते हैं, माँ साथ चलो मेरे, मैं चुप बैठ नहीं सकती। लड़की की इस बात सुनकर उसकी माँ बोलती है, बोला था ना, बोला था ना निकलो बाहर घर का काम निभाओ, झुक गया सर गली गली शुद्धिकरण कराओ। किस अभिमान में लोगों से आंखें मिलाऊंगी अब, किस अभिमान में लोगों से आंखें मिलाऊंगी अब, ढूंढ लिया है तेरा वर अब दूजे घर को जाओ। इन जवाबों को सुन के लड़की की आंखें लाल हो जाती हैं, वो आग की तरह तपने लगती है और आवाज उठा के बोलती है, तुम सबकी मानो तो हलक को सांस ना पहुंचाऊं, तुम सबकी मानूं तो हलक को सांस ना पहुंचाऊं, घर से बाहर जाऊं तो आंख ना उठाऊं। ऊपर वाला भी हैरान होगा तुम सबकी बातें सुनकर, जी चाहे क्यों ना दुनिया को आग में लगाऊं। मगर नहीं, मगर नहीं, तेजाब का डर नहीं तुम सबकी बातें सुनकर, मुझे आग की फिक्र नहीं इन लफ्जों में जलकर। चलूंगी अकेले लड़ूंगी अकेले जब तक जिगर में दम है, बुरखा नहीं डालूंगी मैं शैतानों से छिपकर, बुरखा नहीं डालूंगी मैं शैतानों से छिपकर। थैंक यू। माय गॉड, दिस पोइट्री, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्ड्स नहीं है। थैंक्स यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So guys, I request everyone to compliment it, not over that chat box, to unmute your mics and compliment it here. Oh my God, thank you Aryan. Okay, so guys, please unmute your mics.
आई थिंक या तो सबका ही किसी काम में बिजी होंगे, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। और आर्यन या कोई भी अगर सुन रहा है तो या इफ आई टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस कि मैं पोएट्रीज को पब्लिश भी करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम है माई इंक माई प्रिंट्स। सो जस्ट इन केस आप लोगों को मन करे तो उधर जाइए और देखिए, दैट्स ऑल। सो गाइस, कहाँ हैं आप लोग? गाइस सब बिजी हैं शाम के We are 5:30 audible. बजे। We are audible या to everyone. Are we audible? आई एम नॉट श्योर, देयर इज एवरीवन इज ऑन म्यूट। Yeah. वेल यू बोथ आर ऑडिबल एंड हम में से शायद ही कोई इसीलिए कमेंट या कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है बिकॉज वो रोंगटे खड़े कर देने वाली पोयम थी। हम लोग रोज ये चीजें फेस करते हैं ना, तो हम समझ सकते हैं। आपने बहुत डेप्थ में लिखा है पूर्व, लिटरली टच्ड अवर हार्ट्स, लिटरली थैंक यू हैट्स ऑफ टू यू। बहुत प्यारा लिखा है आपने। एंड मैं लाइक आई कैन एश्योर यू कि यहाँ हर किसी के रोंगटे खड़े हुए हैं, इसलिए सबका माइक म्यूट पर है। मुझे भी काफी थैंक हिम्मत यू। लगी है कहने में। मेजर थैंक्स टू यू अदिति। आई मीन तुम लोग वो लोग हो जो झेलते हो, राइट? मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व करके लिख दिया हूँ। बट इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन अगर हर किसी की हो तो शायद कुछ मतलब बुरखी की जरूरत ही ना पड़े ना। या आई गेट इट। थैंक यू अदिति, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड इफ देयर इज एनीवन एल्स, थैंक यू एवरीवन। इवन जब मुझे कॉम्प्लीमेंट रिसीव नहीं हुआ, बट आई एम श्योर, आई होप दैट आप लोगों को अच्छी लगी हो। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ज्यादा भाई। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो गाइस, दिस वाज अपोज एंड हमने तो बहुत एंजॉय करा, रियली बहुत। आई होप सभी लोगों ने एंजॉय करा होगा इनकी पोएट्रीज। सारी पोएट्रीज ने गूज बम्प्स दिए काफ़ी ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई वुड लाइक टू कॉल Aditi God over here. She will recite something. I hope you all will like and you will definitely like. Hi Aditi. Hi Aaron, hello everyone. And before I start my poem or my introduction, I would like to thank each and every participant over here, especially the millennial writer Apurv. Like जिन लोगों ने narrate कर चुके हैं अपनी poetries, आप लोग बहुत awesome हो, and I wish कि आप like you achieve what you actually deserve. And Apurv, आपकी poem literally अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट दोज लाइन्स। इट मतलब काफी ज्यादा हार्ट टचिंग थी एंड आई थिंक कोई भी इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब कोई इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितने अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया है। नाउ कमिंग टू मी, माय नेम इज अदिति गौड़। आई एम अ BSc बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय सेकेंड ईयर। आई एम डूइंग माय लाइक ग्रेजुएशन फ्रॉम वनस्थली विद्यापीठ। और मैं बेसिकली हर टॉपिक पे लिखती हूँ, बट आज आई डिसाइडेड कि सब प्यार पे ही लिखते हैं मोस्टली राइटर्स, तो हम प्यार वाले ही नरेट करेंगे। सो हियर्स माय फर्स्ट पोएम। तू दस्तक सी तो दे एक दफा, तू दस्तक सी तो दे एक दफा, तेरी पनाह के लिए ही इस दिल को खाली रखा है। पूरी दुनिया कम पड़ेगी मेरे दिल के आगे, पूरी दुनिया कम पड़ेगी मेरे दिल के आगे, क्योंकि तेरे लिए ही इसे सजा रखा है। ना सुबह का तेज उजाला ना रात का अंधेरा है इसमें, ना सुबह का तेज उजाला ना रात का अंधेरा है इसमें, इसमें बस तेरे मौसम और तेरी बातों को संजो रखा है। ये रौनक से भरा है फूलों से घिरा है मेरा दिल, ये रौनक से भरा है फूलों से घिरा है, तू देखेगा जिस भी कोने में वो तेरी तस्वीरों से ही उभरा है। एक दफा, महज एक दफा इसमें अपनी मर्जी से आकर तो देख, कुछ वक्त ही सही पनाह ले ले, तुझे सुकून ना मिले तो कहना, तुझे सुकून ना मिले तो कहना, तू खुद कहेगा तेरे दिल से अच्छा आशियाना और कहाँ, मेरे दिल से अच्छा आशियाना और कहाँ। So my next poem is, the title of my next poem is तू जरूर है। तू जरूर है, मेरे पास नहीं पर मेरे साथ जरूर है। गुड मॉर्निंग सनशाइन से मेरी सुबह भले ही ना हुई हो कभी, पर गुड नाइट लव की मुझे आदत जरूर है। वो बड़े बड़े सपनों का जुनून नहीं, वो बड़े बड़े सपनों का जुनून नहीं मुझे, पर तेरी पनाह में बहकने का फितूर जरूर है। तेरी आंखों में कभी डूबी नहीं मैं, तेरी आंखों में कभी डूबी नहीं मैं, पर इन्हें एक टक देखकर मेरा वक्त रुका जरूर है। वो चांद या सितारों की चाहत नहीं, वो चांद और सितारों की चाहत नहीं, पर तेरी हंसी की चमक की चाह जरूर है।
वो दो अजनबियों का हसीन किस्सा सुनने का नहीं, वो दो अजनबियों का हसीन किस्सा सुनने का नहीं, पर तुझसे बखूबी जुड़े रहने का चस्का जरूर है। तुझसे मिलूं ना भी तो कोई मलाल नहीं, तुझसे मैं मिलूं ना भी तो कोई मलाल नहीं, पर तेरी खबर को मुझे जानना जरूर है। तेरे साथ खुशी बांटने का कोई ख्वाब नहीं मेरा, तेरे साथ खुशी बांटने का कोई ख्वाब नहीं मेरा, पर हमेशा परछाई सा रहने का पागलपन जरूर है। तेरे साथ मरना नहीं है मुझे, तेरे साथ मरना नहीं है मुझे, पर तेरे साथ जीना जरूर है। तू होगा बहुत आम सा इंसान, तू होगा बहुत आम सा इंसान, पर मेरे लिए तू खास जरूर है। तेरे साथ अभी कम ही सही, तेरे साथ अभी कम ही सही, पर आगे बेहिसाब यादें बनाना जरूर है। तेरी जिंदगी में पहले नहीं थी मैं, तेरी जिंदगी में पहले नहीं थी मैं, पर अब उसके हर हिस्से में मुझे रहना जरूर है। यूं तो अकेले चाय बहुत बार पी है मैंने, यूं तो अकेले चाय बहुत बार पी है मैंने, पर अब उस प्याली को तेरे साथ बांटना जरूर है। मैंने जिंदगी में ज्यादा अंधेरे ही देखे हैं, मैंने मेरी जिंदगी में ज्यादा अंधेरे ही देखे हैं, पर तू मेरी रोशनी जरूर है। यूं तो जी ही रही हूं हर दिन अकेले मैं, यूं तो जी ही रही हूं हर दिन अकेले मैं, पर तू मेरे जीने की वजह जरूर है। तू जरूर है, मेरे पास नहीं पर मेरे साथ जरूर है। सो हियर्स माय नेक्स्ट पोएम। इसका टाइटल है, हाँ आर्यन, एनीथिंग? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा, यू नो पर्सन लिटरली। थैंक यू। मेरी नेक्स्ट पोएम का टाइटल है हम सफर। तुम हमारे घर का क्षितिज बन जाना, तुम हमारे घर का क्षितिज बन जाना, मैं सूरज की पहली किरण बन जाऊंगी। दिन शुरू ही तुम्हें सहलाने से होगा, और तुम्हें सहलाते सहलाते ही मैं अस्त हो जाऊंगी। तुम मेरी सुबह की चाय बनना, मैं इलायची और अदरक सी तुम में घुल जाऊंगी। तुम सुबह की चाय बनना, मैं इलायची और अदरक सी तुम में घुल जाऊंगी। तुम मिठास से मेरा दिल लुभाना, तुम मिठास से मेरा दिल लुभाना, मैं तुम्हारी रूह तक चैन पहुंचाऊंगी। तुम गर्मियों की तेज दोपहर में, तुम गर्मियों की तेज दोपहर में मेरे मटके का पानी बन जाना। मैं शाम को तुम्हारे आराम का जरिया उर्फ बादाम और मावे की कुल्फी बन जाऊंगी। तुम बारिशों की बूंद सही, तुम बारिशों की बूंद सही, मैं मिट्टी की खुशबू बन जाऊंगी। तुम यूं ही मुस्कुरा के इशारा कर देना, मैं तुम्हारे लिए गर्म सा कंबल और पकौड़े ला दूंगी। तुम सर्दियों में गर्म रजाई बन जाना, तुम सर्दियों में गर्म रजाई बन जाना, मैं रुई की तरह तुम में समा जाऊंगी। तुम ठिठुरते जो दिखोगे कभी हाथ कांपते, तुम ठिठुरते जो दिखोगे कभी हाथ कांपते, मैं ताप बन तुम्हारे लिए ही जल जाऊंगी। तुम मेरा आसमान बन जाना, तुम मेरा आसमान बन जाना, मैं समंदर बन तुम्हें ही ओढ़ूंगी। तुम बोलोगे जिस जगह उसी तरफ अपनी लहरें मोड़ूंगी। तुम कोई राहगीर बन जाना, तुम कोई राहगीर बन जाना, मैं तुम्हारा पथ बन जाऊंगी। तुम कहना तुम्हारी मंजिल दूर है, तुम कहना तुम्हारी मंजिल दूर है, मैं तुम्हारा हमसफर बन जाऊंगी, मैं तुम्हारा हमसफर बन जाऊंगी। So here's my last poem. वाओ, Thank you so much. Thank you so much अपूर्व। अब मैं मेरी लास्ट पोएम की तरफ हूँ। इसका टाइटल है तुम ही से तो है। मेरी हर कविता के अल्फाजों में पिरोए हुए वो प्यार के जज्बात तुम ही से तो है। मेरे दिन भर का जुनून और रातों का सुकून तुम ही से तो है। मेरे ख्वाबों के पंख और ख्यालों की पतंग वो भी तुम ही से तो है। मैं परवाह करती हूँ सबकी, मैं परवाह करती हूँ सबकी, मुझे लापरवाह मत समझना, मेरी ये बेपरवाही भी तुम ही से तो है। हूँ एक आजाद पाखी मैं, हूँ एक आजाद पाखी मैं, हौसला है मुझ में आसमानों से भी ऊंची उड़ान भरने का, पर इस जमीन पर रहकर इस पिंजरे से ये मोहब्बत भी मेरी तुम ही से तो है। यूं तो समझदार हूं मैं, यूं तो काफी समझदार हूं मैं, पर मेरा ये बचपना और ना समझी भी तुम ही से तो है।
मैं जो भी चाहूँ वो पा सकती हूँ, मैं जो भी चाहूँ वो पा सकती हूँ, पर मेरी तुम्हें पाने की जिद भी तुम्ही से तो है। तुम सुंदर हो, सादगी में सुंदरता है। तुम सुंदर हो, सादगी में सुंदरता है, ऐसा लोग अक्सर कहते हैं। मेरी आंखों में छुपा हुआ कोई राज ये लोग अक्सर तलाशते रहते हैं। आईने में जब देखती हूँ मैं आईने में जब देखती हूँ मैं तो पहचान जाती हूँ कि मेरा ये अक्स, मेरी मुस्कान और मेरी ये सादगी भी तुम्ही से तो है। सब हदें पार कर किसी को बेहद चाहना, सब हदें पार कर किसी को बेहद चाहना, किसी का इंतजार करते करते खुद लापता हो जाना। प्यार में वो पागलपन और पर इश्क तो है। मेरा ये बेहद लापता सा पागलपन का फितूर भी तुम्ही से तो है। हाँ मानती हूँ, हाँ मानती हूँ मुझे प्यार करना नहीं आता, और हमारे बीच जो है ये शायद मोहब्बत नहीं। हाँ मानती हूँ मुझे प्यार करना नहीं आता, और हमारे बीच जो है ये शायद मोहब्बत नहीं। तुम मैं नहीं, मैं तुम नहीं, और हम किसी रिश्ते के मोहताज नहीं। पर मेरा पर मेरा तुम्हारे नाम पर ठहरना, तुम्हारी तस्वीरों को चूमना, तुम्हें सपनों में संवारना, खामोशी में पुकारना, तन्हा रातों में गले से लगाना, यादों में बुलाना, मैं कौन हूँ ये भूल जाना, और तुम ही से अपनी पहचान बनाना, तुम पर जान छिड़कना और तुम ही पे मरना। इस बेनाम से रिश्ते को ही शायद इश्क कहते हैं, और अगर यही इश्क है तो मेरा ये इश्क भी तुम ही से तो है, मेरा ये इश्क भी तुम्ही से तो है। So that's it. These were my poetries, and thank you so much, Aryan, and of course Split Poetry India, for giving me this opportunity. Like, virtual mic is really so cool at this time of where we can't go out, where we can't meet. So thank you so much, everyone who are the participants, especially the host Aryan Verma. Thank you. थैंक यू तो मेरे को बोलना चाहिए. Thanks to you, Aditi, for performing these pieces, these poetries, and these are really, really awesome. Thank you, And Aryan. as you are my personal favorite, why I really enjoyed listening to these poetries over here, like you on live. Loved Thank it. you, Aryan. Really loved it. Okay, so guys, this was Aditi God, and her poetries were love, really, really love. So, without wasting much time, I'd like to call Anshika Nishad. Anshika. Hello, Hello. am I audible? Yeah. Yeah, yeah. Okay, so my name is Anshika and I'm from Lucknow and I'm the author of two books. So, yeah, I'm going to recite four poetries. Hope you people like it. Okay, so my first poetry's title is एक तरफा प्यार. पहली बार एक तरफा प्यार करके मुझे सुकून मिल रहा है. वो मुझसे है तो बहुत दूर पर मेरे अंदर घुल रहा है. वो मुझसे प्यार करता है या नहीं ये तो पता नहीं, पर कहीं ना कहीं वो मेरी चाहत को समझ तो रहा है. इजहार करने से कतरा रहा है शायद वो, पर उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए सुरूर दिख तो रहा है. एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जब मैं उसे याद ना करूं, पर क्या वो भी मेरे ख्वाब बुन रहा है. सख्त तो थी ही नहीं मैं पहले भी कभी, पर उससे मिलने के बाद दिल मेरा भी थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है. मोहब्बत होने में अभी वक्त है बहुत, मगर सवाल ये है कि क्या उसका दिल भी मेरे लिए मचल रहा है. खुशियों से रूबरू करा रहा है वो शख्स मुझे, लगता है अब वो भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है. हाँ दोस्तों, एक तरफा प्यार करके मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है. दिस वॉज माई फर्स्ट पोइट्री.
and my second poetry title is क्या तुम मुझसे कॉफी पे मिलोगे। सुनो ना, कुछ तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूँ, कुछ अपने दिल की बातें तुमसे कहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे कॉफी पे मिलोगे। तुम्हारी आंखों को पढ़ना चाहती हूँ, तुम्हारा हाथ थाम के थोड़ा दूसरों को जलाना चाहती हूँ। बोलो ना, क्या तुम मुझसे कॉफी पे मिलोगे। तुम्हारे सामने थोड़ा शर्माना चाहती हूँ, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। बोलो ना, क्या तुम मुझसे कॉफी पे मिलोगे। तुम्हारे सामने अपने शब्दों को थोड़ा मिठास से भर के बोलना चाहती हूँ, तुम्हें हर क्षण और निहारना चाहती हूँ। बोलो ना, क्या तुम मुझसे कॉफी पे मिलोगे। मैं अपने हाथों से तुम्हें कॉफी पिलाना चाहती हूँ, साथ ही साथ तुम्हारी झूठी कॉफी भी पीना चाहती हूँ। बोलो ना, क्या तुम मुझसे कॉफी पे मिलोगे। मिले होंगे लाखों हसीनों से, तुम पर विश्वास करो, इस मिलन को यादगार बनाना चाहती हूँ। बोलो ना, क्या तुम मुझसे कॉफी पे मिलोगे। This was my second poetry, and my third poetry title is बहुत खुश रहने लगी हूँ। तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो ना, मैं सच में बहुत खुश रहने लगी हूँ। हाँ, सच में ठीक सुना तुमने, मैं खुश रहने लगी हूँ। हाँ, कभी कभी बेवजह यूं ही बिना किसी बात के मैं मुस्कुराने लगी हूँ। हाँ, सही कहते हो तुमसे मिले बिना ही तुम्हारे प्यार में पागल होने लगी हूँ। हाँ, सच है ये कि तुमने अपनी इजहारे मोहब्बत बहुत बार किया है मुझसे, पर यकीन मानो बिना बोले ही मैं तुम्हारी मोहब्बत कबूल करने लगी हूँ। हाँ, पता है मुझे तुम मुझसे मिलने को बहुत बेताब हो, पर यकीन मानो तुम्हारे एहसास को महसूस करने के लिए मैं भी तड़पने लगी हूँ। हाँ, सही कहते हो तुम कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। अब इन शब्दों को सच में मैं महसूस करने लगी हूँ। हाँ, पता है मुझे कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, पर यकीन मानो तुम्हें अपना बना के मैं खुद को खुशनसीब मानने लगी हूँ। हाँ, पता है मुझे मोहब्बत बार बार नहीं होती, पर यकीन मानो अगर मोहब्बत से भी कुछ बढ़कर है इस दुनिया में, तो वो मैं तुमसे करने लगी हूँ। हाँ, पता है मुझे तुम्हें मेरी बहुत याद आती है, पर यकीन मानो मैं इन यादों में भी सिर्फ तुमको ही चाहने लगी हूँ। हाँ, तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे, इस बात का पूरा यकीन है मुझे, पर विश्वास मानो इस यकीन से बेहद खुश होने लगी हूँ। आखिर मैं बस यही कहूँगी, सुनो ना, मैं बस तुम्हारी होने लगी हूँ, मैं बस तुम्हारी होने लगी हूँ। So this was my third poetry, and my last poetry is my most favorite one. So I hope you people will like it. इसका टाइटल है My First Dream Date. उसकी आंखों में मैं डूब जाऊं, मेरी निगाहों में वो खो जाए, हमारी पहली मुलाकात बस कुछ ऐसी हो जाए। उसकी बातों पर जब मैं हल्का सा शर्मा जाऊं, तो वो बस मुझे एक टुक निहारता चला जाए, हमारी पहली मुलाकात बस कुछ ऐसी हो जाए। मैं जानबूझ के उससे मिलने अपने बालों को बांध के जाऊं, और वो बातों ही बातों में मेरी जुल्फों को खोल जाए। उफ, हमारी पहली मुलाकात बस कुछ ऐसी हो जाए। उसका हाथ जब मेरे हाथ से हल्का सा छू जाए, और मैं अपना हाथ धीरे से उसके हाथों पे रख जाऊं, बस हमारी पहली मुलाकात कुछ ऐसी हो जाए। जब बाजार में वो मेरा हाथ थामने की कोशिश लगातार करता चला जाए,
और मैं उसकी कोशिशों को बर्बाद न चाहते हुए अपनी तरफ से पहल कर जाऊं। बस हमारी पहली मुलाकात कुछ ऐसी हो जाए। जब पानी के बताशे का ठेला देखकर मेरा दिल पिघल जाए और वो बड़े ही प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाए। बस हमारी पहली मुलाकात कुछ ऐसी हो जाए जब उसे मेरा हाथ से बना कुछ खाने का मन कर जाए और उसी वक्त मैं अपने हाथों से बना खाना उसे अपने ही हाथों से खिला जाऊं। बस हमारी पहली मुलाकात कुछ ऐसी हो जाए जब उसे और मुझे, हम दोनों को ही चाय की टपरी को देखकर प्यार उमड़ जाए और हम एक ही चाय की कूलर से चाय पी जाएं। बस हमारी पहली मुलाकात कुछ ऐसी हो जाए जब हमारे घर जाने का वक्त नज़दीक आ जाए और वो मेरी इजाज़त लेके मुझे बस अपनी बाहों में भर जाए। बस हमारी पहली मुलाकात कुछ ऐसी हो जाए। सूरत, these were my 4 poetries. बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा। We really enjoyed these poems Thank and you the so much. and that कॉफी वाली पोइट्री एंड उसके बाद वो एक तरफा प्यार, तो काफी ज्यादा एक काइंड ऑफ रिलेटेबल एंड बहुत ज्यादा बढ़िया। Thank you, Aryan, and thanks to the whole team of SPI, and thanks for having me here. I am glad that you people have joined with us. Thank you. We are glad to have you with us. Okay, so guys, we have completed our all performance. So I hope you all enjoyed this session, as this was the day 2 of SPI's virtual open mic. So did you all enjoy the session? Can we all Yep, connect together? totally. Of course we did. Yeah. आगे पूछने की बात ही नहीं है ये। Yeah, Tanisha was on a good point, by the way. क्या? Tanisha Can was we on all a good connect? point, yeah. Please continue, yeah. Yeah, I'm saying that can we all connect with each other? Can you make a group for all of us so we support each other? You all are in SPI, Split Poetry India's WhatsApp group. I think I'm not. Yeah, I am. We'll add you soon. We'll add you soon. We have a WhatsApp group for Split Poetry India, where all the writers and all the performers that are here are added there so that they can connect, they can interact with each other. So we'll add you soon. Okay, sure. Thank you. Okay, so guys, so with this is a wrap of today's virtual open mic session. We really enjoyed, and we Wait. Aryan, wait. yes, yes, Aryan, yes. before you end this session, I want you to recite something. No? You want me to decide something? I decided, na? No, again, something different. Okay, so I'll recite, then we'll end the session. Yeah, please Okay. go ahead. Uh, मेरी हिंदी सही है, हिंदी पोइट्रीज मैं ज्यादा लिखता हूँ, तो ये मेरी पोइट्री होप आप लोगों को पसंद आए। आप लोग तो ना इसकी इसकी ना ये पोइट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैसे इसे रिलेट करना है वो बताता हूँ, क्योंकि वैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी उस तरीके में। हाँ, समझ आएगी बट थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इस पोइट्री का टाइटल है खाली कमरा दिल मेरा। जैसा टाइटल में है My favorite one. ओके, तो जैसा टाइटल में है कमरा, तो आपको इस पोइट्री को एक कमरे से रिलेट करना है। तो अब कैसे करना है? कमरे में हम घुसते हैं तो सबसे पहले दरवाजा होता है, फिर सामने वाली दीवार होती है, फिर दाईं तरफ वाली दीवार, फिर बाईं तरफ वाली दीवार, छत, जमीन और चारों कोने। ठीक है? ओके, तो फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले दरवाजा, सामने वाली दीवार, दाईं तरफ वाली दीवार, बाईं तरफ वाली दीवार, छत, जमीन और चारों कोने। तो ये ऐसे शुरू होता है, खाली कमरा दिल मेरा, बस दरवाजे पर तुम्हारा नाम लिखा है, और हाँ, सामने वाली दीवार पर तुम्हारी हंसती हुई, मुस्कुराती हुई और शर्माती हुई न जाने कितनी तस्वीरें लगी हैं, जिसे कमरे में घुसते ही देख लो तो मानो ऐसा लगता है जैसे तुम पास ही हो।
दाहिनी तरफ वाली दीवार पर वो कस्में लिखी हैं, वो सुख दुख में साथ निभाने वाली कस्में, वो खुद से पहले एक दूसरे की सोचने वाली कस्में, और न जाने कितनी अनंत कस्में जो हमने खाई थी। बाईं तरफ वाली दीवार को मैंने खाली रखा है उन गलतियों को लिखने के लिए जो गलतियां बेवजह हमारे हिज्र का कारण बनी। हिज्र का मतलब जुदाई। वो जो गलतियां बेवजह हमारे हिज्र का कारण बनी। छत पर मैंने तुम्हारी पसंदीदा लाल रंग की चुनरियों को सजाया है, जिन्हें बाजार में लगे देख तुम खिलखिला उठती थी। फर्श पर फर्श पर मैंने तुम्हारी पसंदीदा गुलाब की पंखुड़ियों को बिखेरा है, जिनका स्पर्श मात्र ही मन को लाभान्वित कर देता है। चारों कोनों में मैंने तुम्हारी पसंदीदा रात की रानी की फूल के खुशबू को बिखेरा है, जिनके सांसों में मिलते ही मानो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भूल जाएं और प्रकृति के गोद में सो जाएं। वैसे तो काफी कुछ है दिल में मेरे वैसे तो काफी कुछ है दिल में मेरे, फिर भी खाली कमरा दिल मेरा, फिर भी खाली कमरा दिल मेरा। वाह, बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी आर्यन। थैंक यू। Thank you, Aryan. थैंक यू थैंक यू। विनर्स कब अनाउंस होंगे? Welcome बोलते हैं। ओके। हेलो। हाँ, विनर्स कब अनाउंस होंगे? ओके, इसको उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी वो एसबीआई की तरफ से। एंड आप लोगों को सर्टिफिकेट्स आप सभी परफॉर्मर्स को मिलेंगी। And so with this, this is a wrap of today's session. I hope you all enjoyed the session. And here is an update. So SPI Split Poetry India is Split Poetry India is compiling an anthology. We have an ongoing project that's Sapphire Night. So if anyone want to participate in it, you can ask us for details. You can DM us or you can mail us at contact.splitpoetry.com. So this anthology is all about the theme of anthology is romance and love. So and the amount to be paid is 99 rupees. So instead you can DM and mail us for details. Okay, guys, thank you everyone for joining. So with this, I'm wrapping up this session. Split Poetry India is really very glad to have writers like you with us. Thank you for your precious time and precious contents. Sure. Okay. Thank you so much. Yeah, Thank you, Aryan. most welcome, Aditi. Okay, guys, so now you can leave.